Good afternoon, everyone. Today is the last day of the October, and these are the five articles that we would be discussing. First article is Rashtriya Ekta Divas to remember the solid contribution of Sardar Vallabhbhai Patel. Second article is about nuclear test being resumed by the US. Almost 33 years के बाद US फिर से न्यूक्लियर स्टेट को स्टार्ट कर रहा है. फिर third article is regarding inclusion of artificial intelligence in education curriculum. Fourth is from environment ecology. नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मध्य प्रदेश की, उसके बारे में न्यूज़ है जिसमें चीता का इंट्रोडक्शन होना है. एंड द लास्ट वन इज 2025 स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट, अगेन क्लाइमेट चेंज. Okay, so let's get started. But before we move further, kindly scan this QR code in order to join the Telegram channel and to get the access to all the informative documents, infographics. Soon we would be starting our next GS Foundation batch. This batch is both in online and offline mode and much better suited for the working professionals. For further details, you can contact on this number. So without wasting any further time, let's get started. First article is regarding राष्ट्रीय एकता दिवस. राष्ट्रीय एकता दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं ऑनरेबल सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर. तो आज 31 अक्टूबर जो है, आज उनका 150th बर्थ एनिवर्सरी है. स्टॉलवर्ट का 150 साल पहले इसी दिन जन्म हुआ था. ऑन दिस डे नेशन revisits his indispensable contribution to the unification and consolidation of India. Then his role in establishing India's civil services, and then his enduring legacy as a statesman. To commemorate his contribution, every year राष्ट्रीय एकता दिवस is celebrated. अब थोड़ा सा पटेल सर के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जान लेते हैं. जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है, उनका रोल क्या था. मतलब एक तो प्री इंडिपेंडेंस, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस टाइम पे भी उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा. लेकिन अभी के लिए हम थोड़ा पोस्ट इंडिपेंडेंस के ऊपर फोकस कर लेते हैं. एट इंडिपेंडेंस इंडिया हैड 565 princely states. मतलब टुकड़े टुकड़े ज्योग्राफी भी कर सकते थे. 565 princely states इंडिपेंडेंस के टाइम पे थे. Sardar Vallabhbhai Patel, as a deputy prime minister and as a home minister, took upon himself to ensure their their accession of these princely states to India, and he ensured it through diplomacy, through persuasion, and wherever required, with decisive actions. Operation Polo of 1948 is the example of that decisive action, which led to the integration of Hyderabad states into Union of India. Patel's vision, firmness, and pragmatism made him the architect of the Indian unity. इनके लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो अब आज गुजरात में खड़ा है. About his leadership and ideological stature, he is aptly known as the Iron Man of India because he combined discipline, pragmatism, and selflessness in his behavior and demeanor. He had differences with Jawaharlal Nehru and Mahatma Gandhi, but even having those differences, he placed national interests above personal ambitions. स्पेशली 1946 का जो कांग्रेस प्रेसिडेंशियल रेस था, उसमें से उन्होंने विड्रॉल कर लिया था. ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इनके सेल्फलेस स्टेट्समैनशिप का.
एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशन में उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा? एक ऑल इंडिया सर्विसेज जो है उनका फाउंडेशन पटेल सर ने एस्टैब्लिश किया आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड ही इज द वन हु गेव द टाइटल टू द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एज ऑल इंडिया सर्विस एज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। 1947 में उन्होंने प्रोविजनर्स को एड्रेस किया था, जहां पे इंटीग्रिटी, न्यूट्रलिटी एंड कमिटमेंट टू द नेशनल यूनिटी, इसको उन्होंने हाईलाइट किया था। मतलब एथिक्स का पेपर जो आज हम पढ़ते हैं, जिसका आंसर आज हम दे रहे हैं, उसके 70 साल पहले सर ने इसके बारे में बात की थी प्रोविजनर्स के सामने, सिलेक्टेड ऑफिसर्स के सामने। लीगेसी एंड सिंबलिज्म, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, जो आज 182 मीटर के हाइट पे खड़ा है, इट सिंबल्स एज अ symbol of national integration and tribute to the Patel's vision, represents India's gratitude for his role in shaping its unity and administrative machinery. उनका रेलेवेंस क्या है फॉर द कंटेम्पररी इंडिया? जो सुराज था, Patel's vision of Suraj, that is of good governance and inclusive nation building, aligns with present day goal of Amrit Kal and Ek Bharat Shresth Bharat vision. सर का कंट्रीब्यूशन इतना सुपीरियर थे कि आज भी जो आईपीएस ऑफिसर सिलेक्ट होता है, उनकी ट्रेनिंग हैदराबाद में होती है। उस ट्रेनिंग एकेडमी का नाम भी एसवीपी एनपीए है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। इतना बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। Next question, the first question, with reference to the role of Patel in the integration and administration of India, consider the following statements. He was the chief architect behind the Operation Polo, which led to accession of Hyderabad to India. Correct. So option C is eliminated. He described the Indian civil service as the steel frame of India. Correct. Statement 2 is correct. So option D is eliminated. So अभी जो बचा ऑप्शन उसमें 1 and 2 only and 1, 2 and 4 only, तो 3 स्टेटमेंट है ही नहीं, तो इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड नियर सरदार सरोवर डैम ऑन द नर्मदा रिवर इन गुजरात। करेक्ट, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग यूएसए। दे हैव डिसाइडेड टू रिज्यूम द न्यूक्लियर टेस्ट। ये न्यूक्लियर टेस्ट जो थी वो 1992 से बंद थी, इन्होंने बंद की थी बिकॉज ऑफ द साइनिंग ऑफ सीटीबीटी। ठीक है, अब हुआ क्या है, क्यों वो फिर से रिस्टार्ट कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प के अंडर यूएसए इज कंसिडरिंग रिस्टार्टिंग ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स आफ्टर गैप ऑफ नियरली 33 years. This move of restarting has reopened the debate over the purpose of the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, CTBT. ये ट्रीटी है जो कॉम्प्रिहेंसिव है, ये साइन की गई थी, डिस्कस की गई थी इन ऑर्डर टू बैन न्यूक्लियर टेस्ट, है ना। इस आर्टिकल में कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहले तो बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये न्यूक्लियर टेस्टिंग का एक, आज तक यूएसए ने लगभग 1000 प्लस 1032 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए बिटवीन 1945 टू 1996। ठीक है, जो लास्ट टेस्ट हुआ था दैट वाज कैरिड आउट इन 1992। ऑल्दो द यूएस हैज साइंड द सीटीबीटी इन 1996, इट हैज नॉट रैटिफाइड। थोड़ा सा सीटीबीटी के बारे में जान लेते हैं। सीटीबीटी को अडॉप्ट किया गया था 1996 में। इसका पर्पस था टू बैन ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजंस फॉर बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पसेस। अब तक 187 कंट्रीज ने उसको साइन कर दिया है एंड 178 कंट्रीज ने उसको राटिफाई भी कर दिया है। लेकिन जो कुछ की कंट्रीज है, यूएस है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान, इसराइल, दे हैव नॉट राटिफाइड है। इसके वजह से जो एक्चुअली न्यूक्लियर पावर कंट्रीज है उन्होंने राटिफाई ना करने की वजह से the CTBT has not gotten into the force. अब यूएस रिस्टार्ट करने के पीछे क्या पॉसिबल रीजंस हो सकता है? एक, जो रशिया और चाइना के साथ उनका टेंशन बढ़ रहा है, उसमें एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल देना, ये हो सकता है। या शायद मॉडर्नाइज कर देना न्यूक्लियर डिटरेंस को, या रेडीनेस को मेंटेन करना, ये हो सकता है। बट क्रिटिक्स आर आर्ग्यूइंग दैट अगर न्यूक्लियर टेस्ट को रीस्टार्ट किया, रिज्यूम किया,
यूएस है, then it is going to trigger a global arms race, and it is going to undermine the decades of non-proliferation efforts. इम्प्लीकेशन मीन्स मूव की क्या हो गया है? तो ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल आर्म्स कंट्रोल रीजन है, सीटीबीटी हो गया, एनपीटी हो गया, सीटीबीटी का सीटीबीटी तो हम लोग देख चुके, कॉम्प्रिहेंसिव फेज प्लान ट्रीटी, एनपीटी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इन दोनों का अब तक का जो सालों का एफर्ट है उसके ऊपर पानी फिर सकता है, एंड इट मे ऑल्सो प्रॉम्प्ट अदर न्यूक्लियर पावर चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया टू रिज्यूम देयर टेस्टिंग। This is second question. I would urge you to try and attempt it and mention your answers in the comment section. With reference to the CTBT, consider the following statement. CTBT prohibits all nuclear explosion for both civil and military purposes. Yes. Option B is gone. Treaty has entered into force after being ratified by majority of UN members state. It has not entered into the force. क्योंकि 5-6 मेजर कंट्रीज ने साइन नहीं किया ना, तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो स्टेटमेंट 2 is gone. India and the US are both signatories but have not ratified the treaty. Yes. The international monitoring system under the CTBT verifies compliance through seismic, hydroacoustic, and radionuclide technology. Correct. So answer is 1, 3, and 4. Next article is AI powered education revolution. क्या है बैकग्राउंड? बैकग्राउंड ये है कि इंडिया हैज डिसाइडेड कि 2026 ऑनवर्ड्स हर स्कूल में क्लास 3 से आगे के बच्चों को, फ्रॉम क्लास 3 ऑनवर्ड्स, एआई स्कूल में सिखाया जाएगा, स्कूल करिकुलम का हिस्सा बनेगा. इट्स अ ह्यूज स्टेप कंसिडरिंग इंडिया वांट्स टू स्टे अहेड इन 21st सेंचुरी. तो इस न्यूज को एनालाइज कर लेते हैं. India is preparing to introduce AI education from class 3 onwards, starting from 2026-2027 year, which aligns with the National Education Policy of 2020. ठीक है. अब ये जो मूव है, it wants to reorient the education system towards future ready skills or digital inclusivity or personalized learning. पॉलिसी के कंटेक्स्ट में अगर इसको देखेंगे तो दिस इनिशिएटिव इज एक्चुअली पार्ट ऑफ एनईपी 2020's emphasis on 21st century skills such as computational thinking, digital literacy and problem solving. K-12 एक फ्रेमवर्क है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डेवलप कर रहा है. ये K-12 फ्रेमवर्क के थ्रू इट वांट्स टू इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट्स इन अक्रॉस द सब्जेक्ट्स. इस पॉलिसी का पर्पस ही ये है कि टेक सेवी एम्प्लॉयबल फ्यूचर वर्कफोर्स विच इज इक्विप्ड फॉर एआई ड्रिवन इकोनॉमी को बनाना, फ्यूचर प्रूफ रखना. मेजर कंसर्न जो इस पूरे प्रोग्राम में आएगा वो है कि इंडिया में आज 1 करोड़ से ज्यादा टीचर्स है. आप स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हो लेकिन टीचर्स को तो पहले पढ़ाना होगा ना, देन ओनली टीचर्स विल बी एबल टू टीच. तो इतने 1 करोड़ टीचर्स को कैसे आप पढ़ाओगे? इतना लार्ज स्केल कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करोगे आप? अब तक मतलब 2019 से लेकर अब तक सिर्फ 10,000 टीचर्स को हम ट्रेन कर पाए, वो भी इंटेल, IBM एंड नाइलेट में. अब फनी बात ये है कि जो 2019 में ट्रेन हुआ है शायद उनकी ट्रेनिंग अब किसी काम की भी नहीं है, क्योंकि एआई उसके बहुत आगे निकल चुका है. सो इस 1 करोड़ टीचर्स को ट्रेन करना इज नॉट अ जोक, ये बहुत बड़ा चैलेंज है. ऑल्सो चैलेंज इंक्लूड्स लैक ऑफ एआई अवेयरनेस एंड डिजिटल रेडीनेस अमॉन्ग्स द एजुकेटर, रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड, कुछ एथिकल एंड डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, फिर करिकुलम स्टैंडर्डाइजेशन एंड एडॉप्टेशन टू द लोकल लैंग्वेज. ये मेजर चैलेंज है. जो एआई को अगर हम एक्चुअल में इंकलकेट कर पाए एजुकेशन सेक्टर में, तो इट हैज ह्यूमंगस ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल. जैसे कि लर्निंग को ये पर्सनलाइज बना देगा, असेसमेंट मतलब एडेप्टिव असेसमेंट देगा, फिर
एडमिनिस्ट्रेटिवली एफिशिएंसी लेकर आ जाएगा एंड मोर ओवर इंक्लूसिविटी लेकर आएगा, क्योंकि एआई टूल जो है दे असिस्ट लर्नर्स विद डिसेबिलिटी एंड नॉन नेटिव स्पीकर्स थ्रू एडेप्टिव एंड मल्टीलिंगुअल सपोर्ट। तो आपको हर तरीके के स्टूडेंट को ये एजुकेट कर पाएगा। इसका वर्कफोर्स के ऊपर क्या इंप्लीकेशन होगा? नीति आयोग का जो रिपोर्ट है इट सेड के लगभग 2 मिलियन जॉब एआई की वजह से जा सकता है, मतलब 20 लाख लोग अपनी नौकरी गवा सकते हैं 2030 तक। लेकिन अगर आप एआई में ट्रेंड हो तो आप 4 मिलियन के आसपास न्यू जॉब क्रिएट हो सकता है ना? तो जितने नौकरी जाएंगे उससे ज्यादा डबल की नौकरियां जनरेट होगी, लेकिन उसके लिए आपको अपस्किल करना होगा, और इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन के जो स्टूडेंट्स है जो स्कूल में है अभी, उनको ट्रेन करना जरूरी है। दे इसका पर्पज ही है कि जो it aims to breach the future skills gap and ensure the resilience. Ethical accessibility and policy concerns है एक कि भाई इक्विटेबल एक्सेस को इंश्योर करना है, देन जो डेटा बायस है या डेटा एथिक्स है उसको एड्रेस करना है, फिर ह्यूमन एम्पैथी का जो एलिमेंट आता है ना और जो क्रिएटिविटी का एलिमेंट आता है उसको भी मेंटेन करे रखना है। ऑलराइट, लेट्स try and solve this MCQ. I will not answer this MCQ. I would request you to go through this MCQ, pause the video, read it, eliminate options, and come to the conclusion and mention that answer in your comment section. Next article is about Nora Dehi Sanctuary. Nora Dehi Sanctuary जो है पिछले साल उसको टाइगर रिजर्व भी बना दिया था। नौरा देवी सेंचुरी जो है वो मध्य प्रदेश में है। वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिगेस्ट, और द बेटर वर्ड इज लार्जेस्ट। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग लगभग 1200 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ये। तो बहुत बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो टाइगर रिजर्व भी है। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसमें जो चीता इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है, चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम रन होगा, मतलब चीता को नौरादेही सेंचुरी में भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नौरादेही वुड बी द थर्ड प्लेस टू बी इंट्रोड्यूस्ड। पहला था कूनो था, दूसरा गांधी तालाब जो है, मतलब गांधी सागर जो है वो और तीसरा होगा नौरादेही। Like I mentioned earlier, it is going to be developed as the third cheetah habitat in state after Kuno and Gandhi Sagar Sanctuary. ठीक है, ये जो चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। एक चीता जो था इट वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन 1952 ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड हंटिंग। अंडर द प्रोजेक्ट चीता जो 2022 में शुरू हुआ, इंडिया रीइंट्रोड्यूस अफ्रीकन ओरिजिन, नॉट एशियाटिक, African origin cheetahs from Namibia and South Africa to restore the open forest and grassland ecosystems. पहला इंट्रोडक्शन हुआ था पुणे में, मध्य प्रदेश के ही 2022 में। सेकंड जो हुआ वो गांधी सागर में 2024 में। अब थर्ड स्टेट है जिसमें नौरादेही में होगा, जिसके द पर्पस इज टू इंश्योर दैट स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन और जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस इज मेंटेन्ड। थोड़ा सा जान लेते हैं नौरादेही के बारे में। लाइक आई सेड कि लगभग 1200 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है मध्य प्रदेश में। इट इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश। 1200 स्क्वायर किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया होता है, 3 डिस्ट्रिक्ट कवर कर लेता है ये। ऑल्सो इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ टू मेजर रिवर बेसिन्स ऑफ इंडिया, नर्मदा एंड द गंगा। ये जो नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इट इज अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन वुल्फ, जिसके बारे में हम लोग ने 4-5 दिन पहले सीएनए में ही पढ़ा था इसी सीरीज में। 1975 में, in the year 1975, it was given the status of state's largest sanctuary for the conservation of wolves. It is also considered as the suitable area for cheetahs, and it was given the status of tiger reserve a year ago. Like I discussed it during the introduction. With reference to India's Project Cheetah, consider the following statements. The cheetah became extinct in India in the early 1950s, primarily due to habitat loss and hunting. Correct.
So option B is eliminated. The Noradi is has now been identified as the third cheetah reintroduction state after Puno and Gandhi Sagar. Correct. So C is gone. Either 3 is correct or 4 is correct now. All cheetah brought to India Project Cheetah were originally from South Africa. No. So statement 3 is gone. The answer is 1, 2, and 4. They were from Namibia as well. This is the last article of the day. The 2025 State of the Climate Report. क्या है ये जो ग्लोबल ट्री कवर है इट इट हैज सीन लॉस ड्यू टू द फायर्स जो वाइल्ड फायर शुरू हो जाता है उनके वजह से एंड दिस ट्री कवर लॉस हैज सर्ज्ड बाय ऑलमोस्ट 370% compared to 2023. So 2024 has witnessed the highest ever global tree cover loss due to wildfire. Almost 370% increase हुआ in the tropical जो ट्रॉपिकल प्राइमरी फॉरेस्ट होता है ना वहां पे कंपेयर टू 2023 के कंपैरिजन में 370% इंक्रीज हुआ है ट्रॉपिकल प्राइमरी फॉरेस्ट के बर्निंग एरिया में. This has led to the release of massive carbon emissions, which also leads to the biodiversity losses, reinforcing the dangerous climate feedback loop. इसके कुछ की फाइंडिंग है. ये डेटा कुछ ज्यादा ही है और ये डायरेक्टली मेंस में इतना ज्यादा आप इसको यूज नहीं कर सकते, बट आपके प्रीलिम्स के लिए थोड़ा देख रखिए. इसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. एक तो ग्लोबल ट्री कवर लॉस है वो बहुत हुआ है. फायर रिलेटेड लॉस जो है वो 3.2 मिलियन हेक्टेयर्स का हुआ है. जैसे बताया जो 370% एक्स्ट्रा है. लगभग 3.1 गीगा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट रिलीज हो गया बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट फायर्स. इसका जोग्राफिकल स्प्रेड देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका में मैसिव वाइल्ड फायर देखा गया था कैलिफोर्निया में, है ना, और फिर कनाडा में भी. एशिया में जापान में हुआ था, साउथ कोरिया में हुआ था, फिर यूरोप में ऑलमोस्ट 10 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा जल गया, जो ईयू का सबसे भयंकर वाला अब तक का फॉरेस्ट फायर सीजन रहा. इस सब में एक अमेजोन फॉरेस्ट का एक्सेप्शन है. या अमेजोन का डिफॉरेस्टेशन जो है ना इट हैज डिक्लाइन, मतलब डिफॉरेस्टेशन अभी भी चल रहा है लेकिन रेट एट विच इट वाज डिक्लाइनिंग हैज reduced by 30% because of the stronger enforcement. फिर भी उसमें फायर तो हुआ था क्योंकि ड्रॉट था. By 2050 लगभग 47% of the Amazon may actually undergo irreversible ecosystem shifts. बायोडाइवर्सिटी के ऊपर का इम्पैक्ट क्या था कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो है दैट हैज डिक्लाइंड बाय 73% इन 50 इयर्स. लगभग 3,500 से ज्यादा स्पीशीज डायरेक्टली थ्रेटन्ड हो गए क्लाइमेट चेंज से. इस सब का जो रिपोर्ट आया है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका एनालिसिस क्या है. फर्स्ट ये तो क्लाइमेट फीडबैक लूप को एक्सप्लेन करता है क्योंकि जो वाइल्ड फायर्स होते हैं दे एम्पलीफाई द क्लाइमेट चेंज बाय एमिटिंग CO2, जनरेटिंग हीट. फिर बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम लॉस को प्रमोट करते हैं या एक्सेलरेट कर देते हैं. एंड ऑल दिस विल हैव दिस सोशल इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स एज वेल because these wildfires affect agriculture, they affect public health, smoke related जो morbidity होती है वो आती है, and then also affect the livelihood, particularly in the developing regions. Okay, this is the last MCQ and I would request you to try and solve this MCQ. Similarly, मतलब अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर लेते हो तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे. प्लीज मेंशन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है ना ये APSC के स्मार्ट बुक्स ये अब एसएमएस मीडियम में भी अवेलेबल है. 10 स्मार्ट बुक्स है जो प्रीलिम्स के लिए है और 7 है जो मेंस के लिए है. फॉर फर्दर डिटेल्स टू गेट एक्सेस टू योर स्मार्ट बुक्स यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. सी यू टुमारो.